से, रेस्ट वी विल डू इट। तो जब हम किसी लूप को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एंड व्हेन अ करंट इज पास, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट लूप इज ऑलवेज जीरो, रीजन बीइंग लेंथ वेक्टर इज जीरो। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लेंथ वेक्टर यूज करते हैं, so this is L, here it is V in the magnetic field, but इस पे in this two parallel and anti-parallel wires there is no force, और perpendicular वालों पे force लगता है इसमें into the plane and out of the plane, because of which it start rotating, और उस rotation का हमने force multiply by perpendicular distance से torque calculate किया था, it came out to be NIAB sin theta. Torque acting on a current carrying loop, NIA is MB sin theta. वेक्टर फॉर्म में हम टॉर्क को लिखते हैं m क्रॉस v. m is the dipole moment vector and v is the magnetic field applied in a uniform magnetic field. Loop experiences a force, loop experiences a torque which is given as m cross v or mb sin theta. क्लॉकवाइज एंटी कैसे कैलकुलेट किया था हमने, फोर्सेस F इज इक्वल टू बी आई इंटू एल, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड व्यू से देखोगे तो एफ एफ the distance between these two wires is b, where it rotates by an angle theta. In that case डाइपोल मोमेंट के वेक्टर के साथ हम एंगल लेते हैं, दैट एंगल इज थीटा. M and B, this angle becomes theta, so MB sin theta will be right. Perpendicular distance theta 90 minus theta 90 आ गया था theta, so this perpendicular distance is theta. Force का फॉर्मूला VIL, force on these two wires, एक PQ पे और दूसरा RS पे. PQ पे अंदर की तरफ, RS पे बाहर की तरफ, and as a result they start rotating. This torque is force into perpendicular distance, perpendicular distance V sin theta, force is B into I into L. L into B is length into breadth, that is area. So B into I into A sin theta, and I into A becomes dipole moment. It will be MV sin theta. Torque on the dipole, torque on the loops is MV sin theta. M is the dipole moment, जिसके कनेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल. हमें एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी बाकी बैचेस के पैरेलल आने में. फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट. This torque starts rotating the coil. Torque से फिर हमने potential energy calculate की थी, that is minus mb cos theta. All the formulas are similar to the electric dipole. इसलिए electric dipole में torque का formula होता है p sin theta. Here it is mb sin theta. Potential energy of this dipole is minus mb cos theta. Work done in rotating is mb times cos theta 1 minus cos theta 2. Theta 0 degree is stable equilibrium position, theta 180 degree is unstable equilibrium position, और stable equilibrium से थोड़ा सा displace करने पे it start performing SHM. So SHM of a dipole, SHM of any magnetic dipole, formula is 2 pi under root of I divided by m times b. All these things we did last class. आप एक बार पुराने क्लास के नोट्स में चेक कर लेना, ठीक है. क्विकली वी हैव डिराइव्ड, और अगर नहीं आता था तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं. जितने फॉर्मूले इलेक्ट्रिक डाइपोल के थे उसमें P की जगह पे M और E की जगह पे B. All the formulas are exactly similar: force, torque, energy, time period of SHM, and work done in rotating. Now this concept is used in making the moving coil galvanometer and galvanometer conversion. Galvanometer क्या है? Rudraksh, what is galvanometer? Sir, small charges के लिए. हाँ? This will be in your notes, so इसे तो कॉपी करने की जरूरत शायद नहीं है. हाँ, moving coil galvanometer क्या होता है? Galvanometer is a device which is used to detect the current.
करंट को मेजर करने के लिए यूज नहीं करते, बट करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। एंड द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो सिलेबस में अब थ्योरी तो नहीं आएगी टर्म 1 में, इसलिए हम बस क्विकली कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड विल डू सम न्यूमेरिकल जो शायद कुछ किए थे लास्ट क्लास में। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक बड़ा सा कन्वेक्स पोल, कन्वेक्स इसलिए कर देते हैं, सिलेंड्रिकल इसलिए कर देते हैं सो दैट बीच में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज वेरी हाई। A coil of n number of turns is placed in this magnetic field region. ये एक्चुअल में रखा हुआ है perpendicular to the plane. Means this is placed like this. हम इसको साइड से देख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल और रेक्टेंगुलर लूप which is connected with the coil, connected with the wire. And it is connected with a high torsion spring. स्प्रिंग के साथ पॉइंटर, और पॉइंटर ऊपर डिफ्लेक्ट होता है। ये था ना लास्ट लेक्चर में। सर इसका एक दूसरा नाम भी था ना? ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मैग्नेट है, इसका दूसरा नाम क्या होता है बताओ? सर कल बताया था आपने। माइक्रोमीटर। कल बताया था, कल से तुम मैदान में। वेरी गुड। माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, राइट। माइक्रोमीटर इसका दूसरा नाम था, यस है। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरिंग लूप रखते हैं, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड ड्यू टू टॉर्क इट रोटेट्स। The torque is proportional to the amount of current passing. ये सिर्फ डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का शेप थोड़ा दूसरा है। In the magnetic field this coil is placed, जिसकी भी करंट हमें डिटेक्ट करनी हो, जिस भी सर्किट की, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। करंट इंटर्स इनटू दिस पॉजिटिव टर्मिनल, देयर विल बी अ सर्कुलर लूप। इस लूप में कुछ टॉर्क आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, एमबी साइन थीटा टॉर्क लगेगा। इट स्टार्ट रोटेटिंग। बिकॉज ऑफ दैट, इसके टॉर्क की वजह से, दिस इज टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक टॉर्क कॉइल रोटेट होता है। स्प्रिंग एक साइड से ट्विस्ट होगी, बिकॉज स्प्रिंग गेट ट्विस्टेड एट वन एंड, दूसरे एंड पे अपने आप टॉर्क डेवलप हो जाता है। स्प्रिंग को पुल करते हैं बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग अपोजिट में रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। स्प्रिंग को एक एंड से बढ़ के घुमाते हैं, देन द अदर एंड विल अपोज रिस्टोरिंग टॉर्क। स्प्रिंग ने एक अपोजिट रिस्टोरिंग टॉर्क एक्सर्ट किया ऑन द स्प्रिंग, ड्यू टू विच स्प्रिंग स्लाइटली ट्विस्ट, और इसके साथ जो पॉइंटर लगा हुआ था, now that pointer also starts rotating or moving on this scale because of the twist produced by the spring. स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट है, वैसे तो इसको C से डिनोट करते हैं, बट जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी वी डिनोट इट एज K. दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, सिमिलरली टॉर्शनल कांस्टेंट। The current I enters into this loop, उसपे टॉर्क लगेगा, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इट इज mb sin थीटा, m होता है NIA इंटू बी। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। इस जगह तो खैर दिख ही रहा होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप है, कैरिंग क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज हैंड को कर्ल करेंगे, थंब अंदर की तरफ, बी इज इन दी प्लेन। बट दिस इज नॉट द रियल डायग्राम, द एक्चुअल डायग्राम इज स्लाइटली डिफरेंट। इस पोल को हम कन्वेक्स शेप में चेंज कर देते हैं बाय यूजिंग अ सिलेंड्रिकल शेप।
In between these two poles, the north pole से south pole की तरफ, there will be lots of magnetic field lines, and all these field lines will be concentrated at the center. सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है, इसका क्या फायदा होगा? एक छोटा सा कॉइल है, दिस कॉइल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये इसका टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू, ऊपर से जो हम देख रहे हैं दिस इज द कॉइल. मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, प्लस every time it is in alignment with some of the magnetic field. The plane is in alignment with some of the magnetic field, so plane का perpendicular magnetic field से हमेशा 90 डिग्री पे होगा. Theta is always 90 degree and magnetic field is very very strong. हमें टॉर्क ज्यादा चाहिए जिससे कि ज्यादा रोटेशन हो, ज्यादा ट्विस्ट हो, and that we can easily read on the scale. Magnetic torque due to the magnetic force on the coil rotates the coil, which rotates the pointer attached to it, and that gives the deflection which is used to measure the current or detect the current. Because of this magnetic torque, coil twists or coil rotates, which rotates the or twists the spring. इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड टुगेदर. इट ट्राई टू अपोज दैट. Restoring torque produced in this spring is k times theta, where k is called torsional constant. अगर किसी को याद हो तो टॉर्शनल कांस्टेंट हमने क्लास 11th में डिराइव किया था. विद इट टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ अ रॉड फॉर्मूला. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड याद है किसी को? Krish, torsional constant in terms of shear modulus. Yes, sir. Twisting of a cylinder. That was the heading. Pi S R to the power 4 divided by 2 times L. S is shear modulus, R is radius, L is the length. It is the torsional constant of a spring. जितना ज्यादा टॉर्शनल कांस्टेंट होगा उतना ही वो अपोज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में. एंड इन इक्विलिब्रियम जब दोनों टॉर्क दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं देन द पॉइंटर विल स्टॉप एंड दैट पर्टिकुलर रीडिंग विल बी नोटेड बाय द ऑब्जर्वर जहां पर भी वो रुकता है इक्विलिब्रियम. सो इन इक्विलिब्रियम व्हेन बोथ आर इक्वल NIAB, this is the magnetic torque, it is equal to k times theta. The current produced is directly proportional to theta, k by NAB times theta. Current is directly proportional to theta, so means this device can be used to detect the current. S has shear modulus of material. Class 11th में एक chapter था mechanical properties of solid. उसमें हमने पढ़ा था there are 3 types of moduli of elasticity: Young's modulus, shear modulus, and bulk modulus. Okay, इसका यहाँ काम नहीं है, सिर्फ बस पुराना याद दिला रहे थे in case if you remember it. Now करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. इसका मतलब थीटा को हम यूज कर सकते हैं तो डिटेक्ट द करंट. ज्यादा करंट होगी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मेजर. सो आइदर थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई और आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. बोथ वेज डिफ्लेक्शन कैन बी यूज टू मेजर द करंट, बट मेजरमेंट हम नहीं करते हैं फॉर सम प्रैक्टिकल रीजन, बट एटलीस्ट इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द करंट. अगर करंट है तो ये डिफ्लेक्ट होगा. And it is also used to detect the change in direction of current. अगर current की डायरेक्शन clockwise से anti clockwise होगी तो ये opposite direction में deflect हो जाएगा because zero is in the middle of the galvanometer. Theta is proportional to I.
theta will become NAB divided by K times I. Now, in this case, why it is not useful to measure the current? डिटेक्ट तो कर सकते हैं, मेजर क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्या है? इतने सारे यहाँ पे वायर लगाते हैं एंड नंबर ऑफ टर्न्स दैट हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, डिनोटेड एज कैपिटल G। कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तो इसलिए जिस भी सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे टू मेजर, उस सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी सुटेबल बिकॉज इट चेंजेस द करंट। अभी देखते हैं एग्जांपल से। सो देयर आर टू थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए करंट बहुत ज्यादा एंटर नहीं करनी चाहिए एंड जितना भी हमने यहाँ पे मार्किंग किया, लेट्स से देयर आर 100 डिवीजन, उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होती है दैट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। These two values are fixed for any galvanometer। कौन कौन सी? एक तो उसका रेजिस्टेंस, और दूसरा गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट और फुल डिफ्लेक्शन करंट। द गैल्वेनोमीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसलिए बहुत ज्यादा करंट उसमें नहीं पास कर सकते। दिस फुल डिफ्लेक्शन करंट इज ऑल्सो वेरी small. Usually it is of the order of milliampere. IG is full scale deflection current. There are two possible harms. इससे ज्यादा करंट पास करेंगे तो टॉर्क इतना लगेगा कि पॉइंटर टूट जाएगा by the stop, और there will be enough heat produced which will burn the galvanometer coil। उसमें आग लग जाएगी। गैल्वेनोमीटर को हम मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बनाने में बहुत सारे वायर यूज करते हैं एंड द वायर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई लेंथ, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा एंड एज पर दैट ये जिस भी सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे टू मेजर द करंट, उस सर्किट का रेजिस्टेंस ही ओवरऑल चेंज हो जाएगा। वी विल सी दैट। बिफोर दैट देयर आर फ्यू मोर टर्म्स। गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं करंट और वोल्टेज दोनों के लिए। करंट को डिटेक्ट करने में, वोल्टेज को डिटेक्ट करने में, करंट की डायरेक्शन डिटेक्ट करने में, एमीटर की बनाने में यूज करते हैं। डायरेक्टली कैन नॉट बी यूज्ड एज एमीटर, बट यस इन द एमीटर इट इज यूज्ड। सिमिलरली इन द वोल्टमीटर। सो अगर हम इसे करंट के लिए यूज कर रहे हैं, देन डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली? बहुत छोटी छोटी करंट को हम सेंसिटिवली मेजर कर लें, मीन्स एक्यूरेटली मेजर कर लें। तो अगर छोटी सी करंट पास करने पे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, इट इज मोर सेंसिटिव डिवाइस। सो सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन की जरूरत है नहीं अभी फिलहाल हमें, बिकॉज वी डोंट हैव टू राइट सब्जेक्टिव एग्जाम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इसलिए बेटर है थोड़ा क्विकली समझ लेते हैं। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब थीटा इज NAB बाई K टाइम्स I, थीटा बाई I इज NAB डिवाइडेड बाई K। and number of turns, A area, B magnetic field and K is torsional constant। फिर आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर इसी डिवाइस को यूज करें वोल्टेज मेजरमेंट या डिटेक्ट करने के लिए, देन डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज डिफाइंड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। SV is voltage sensitivity। Voltage sensitivity is deflection per unit voltage, theta by I times R। Theta by I is current sensitivity। Voltage sensitivity is current sensitivity divided by resistance। Current sensitivity की वैल्यू है NAB by K, so voltage sensitivity is NAB divided by K times R। करंट सेंसिटिव, हमें सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए, ज्यादा सेंसिटिविटी होगी तो ज्यादा अच्छे से मेजरमेंट होगा, देयर विल बी लेस एरर। बट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो केवल करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं है। देखने में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, SV इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बट नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती, ओनली करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है।
रीजन बीइंग, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो नंबर ऑफ टर्न्स n तो बढ़ ही रहा है, बट लेंथ भी ज्यादा चाहिए होगी, वायर की लेंथ ज्यादा चाहिए होगी, तो रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स डबल, लेंथ डबल मींस रेजिस्टेंस विल बी डबल, द रेशियो विल बी कांस्टेंट। Voltage sensitivity cannot be increased by increasing the number of turns. Voltage sensitivity cannot be increased by increasing number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के केवल करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं। रीजन बीइंग, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी सेम रेशियो में बढ़। ये तो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? करंट कैरिंग कॉइल को, लूप को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने पे टॉर्क लगता है, दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और उसको हमने एक स्प्रिंग के टॉर्क से बैलेंस कर लिया। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्रिंग इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो द डिफ्लेक्शन गिव्स एन आइडिया ऑफ current passing into the galvanometer. Now we'll see why galvanometer is not fit for measurement and how do we make it suitable for measurement. So conversion of galvanometer into a meter and voltmeter. Conversion of galvanometer into a meter. Conversion of galvanometer into a meter. A meter is a current measuring device, और जब भी किसी भी डिवाइस की करंट मेजर करनी है तो उस करंट को हमें गैल्वेनोमीटर से पास करना पड़ेगा, so that current will cause, yes, बोलो बेटा, कह रहा है कोई? ओके, करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर इज नॉट सुटेबल, so conversion of galvanometer into a meter. Conversion of galvanometer into a meter. डायरेक्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को क्यों यूज नहीं कर सकते, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज देयर इज अ सर्किट हैविंग, ये पार्ट हमने नहीं किया ना क्लास में अभी, तो नीति, ध्रुव, ये है क्लास में नाटा, ओके, 10 नहीं, नो नहीं किया ना हमने अभी। No, नव्या, नीति, सक्षम, देव, पायल, ओके, और हियर कौन नहीं है? अनुराग, एक सेकंड। सर अनुराग, तो इस सर्किट में टोटल करंट कितनी है? एक्चुअल करंट, सिंपल कैलकुलेशन, 5 ओम इज द रेजिस्टेंस एंड करंट आ जाएगी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये एक्चुअल करंट है जब हमने इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं किया। टू मेजर दिस, इफ यू कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाना पड़ता है, सीरीज में लगा के व्हेन वी मेजर दिस रेजिस्टेंस, सॉरी मेजर दिस करंट, प्रॉब्लम क्या होगी? वो भी सीरीज में आ गया, 2 ओम, 3 ओम,
गैल्वेनोमीटर इज वेरी हाई रेजिस्टेंस, लेट्स से 100 ओम। तो करंट जो आएगी इसमें सर्किट में, करंट भी है और डिफ्लेक्शन भी होगा, but now the current that will be appearing into this circuit will be drastically changed, थोड़ा बहुत भी नहीं। It is voltage V divided by 100 plus C plus 2, 105, that is approximately 0.1 ampere। एक्चुअल में थी 2 एम्पियर, और जो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, that deflection will be corresponding to 0.1 ampere, nowhere close, 2 से 0.1। so that means this is not fit for measuring the current। करंट को मेजर क्यों नहीं कर सकते गैल्वेनोमीटर से? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी 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 हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को मीटर के लिए कन्वर्ट करना है और मीटर के लिए फिट बनाना है, तो क्या करना होगा? इसका जो रेजिस्टेंस है उसको कम करना है एज स्मॉल एज पॉसिबल। रेजिस्टेंस कम करने का तरीका, बिना अंदर को छेड़छाड़ के, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई है, कितना भी हाई हो, 100 है, 1000 हो, 10,000 हो, इसके साथ एक पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बिकॉज वी सॉ दैट अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू। सो मींस अगर एक रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है सपोज 1000 ओम, हमने पैरेलल में लगा दिया एक 0.1 ओम, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R1 R2 by R1 plus R2, 1000 into 0.1 is 100 divided by 1000 plus 0.1, so 1000.1, which is approximately 0.099। overall resistance has been reduced, इसलिए गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, which is called shunt resistance। a very low resistance is connected in parallel with galvanometer coil। in parallel with galvanometer coil, which reduces the resistance as well as, ये गैल्वेनोमीटर में दूसरा पंगा क्या था? करंट लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम करंट इज IG, इससे ज्यादा करंट जाएगी तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल में आग लगती है, which reduces the resistance and provides alternate path for the excess current। किसके एक्सेस? IG से ज्यादा जो भी करंट होगी, IG इज द मैक्सिमम लिमिट जो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर पास होनी चाहिए। अल्टरनेट पाथ को ही हम शंट बोलते हैं, अल्टरनेट पाथ फॉर एक्सेस करंट। तो गैल्वेनोमीटर में कुछ मिली एम्पियर की करंट थी, सपोज सर्किट में 20 एम्पियर या 10 एम्पियर की करंट है जो कि हमें मेजर करनी है, तो अब हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो गया। सपोज यहाँ से 20 एम्पियर आई, बट गैल्वेनोमीटर के अंदर हम ऐसा रेजिस्टेंस यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर के अंदर ओनली दो few milli ampere pass हो, and the remaining whole current should be bypassed to this shunt in parallel, and then both will be added to I। गैल्वेनोमीटर के अंदर जब भी हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, that shunt resistance reduces the overall resistance, और जितना छोटा शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि उतना ही इसका रेजिस्टेंस कम होता है। Smaller the resistance, more will be the accurate measurement of the current in that circuit। so अगर हमें इस गैल्वेनोमीटर को, जिसका फुल स्केल करंट है IG and the resistance is RG, इसको यूज करना है टू मेजर करंट अप टू कैपिटल I। कैपिटल I हो गया रेंज ऑफ एमीटर, दिस होल थिंग बिकम्स एमीटर। एमीटर के अंदर क्या हो रहा है अभी? that current is getting divided into two branches। नीचे है गैल्वेनोमीटर और ऊपर है शंट रेजिस्टेंस I minus IG into RS। RS is the shunt resistance, right? Okay, so shunt resistance required to measure the current of I
IG divided by I minus IG times RG। कैपिटल आई की करंट को उस गैल्वेनोमीटर से मेजर करने के लिए जिसका फुल डिफ्लेक्शन करंट है IG और शंट गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस है RG। शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर करंट अप टू कैपिटल आई। कैपिटल आई की करंट को मेजर करने के लिए हमें RS का शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और अगेन वी हैव टू स्टिल प्रूव, हम मेजर क्या कर रहे हैं I is that current in the emitter, but deflection कौन शो कर रहा है IG, so we also have to prove that they have to be directly proportional। तो क्या हमें पता भी है, दिख रहा है, but we can prove from here। and second, तो IG को एक साइड ले आते हैं, I times RS is equal to IG times RG plus RS। I is equal to RG plus RS divided by RS times IG। I कितना हो गया, RG by RS plus 1 times IG। I is directly proportional to IG और शंट रेजिस्टेंस आ गया डिनोमिनेटर में। तो ये क्या है, दिस कैपिटल I इज रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर इतनी रेंज तक करंट मेजर कर सकता है by using a shunt resistance of RS। RS is the value of shunt resistance। आइडियल केस में RS 0 होना चाहिए, बट 0 अगर हो गया तो कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर नहीं जाएगी, गैल्वेनोमीटर विल नॉट वर्क इन द केस ऑफ आइडियल एमीटर। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी पूछते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया दोनों का पैरेलल, so this overall is एमीटर denoted as A, capital I is the correct। The resistance of ammeter formed by using this shunt resistance will be the parallel combination of RG and RS। RG RS divided by RG plus RS, parallel combination of RG and RS, right? Very nice। शंट रेजिस्टेंस लगा के हम गैल्वेनोमीटर की, अगर छोटा शंट रेजिस्टेंस करेंगे तो और बढ़ता जाएगा, स्मॉलर देन इट इज बिकॉज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, नेक्स्ट इज एमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हमने इसके क्वेश्चंस कुछ किए थे लास्ट क्लास में, एंड देन मोर वी विल बी डूइंग। सर बोलो बेटा। सर एक वो होता है ना, एक नियॉन स्क्रू ड्राइवर, सर वो कैसे काम करता है? वो ये कहाँ से आ गया, वो अभी कैसे याद आ गया तुम? सर देखा था मैंने कुछ दिन पहले, सर उसमें भी सर उसको डाला था तो उसमें लाइट जल रही थी। वो कुछ इंडक्शन पे बेस काम करता है, आगे अगले चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर। सर 7th वाला? 7 नहीं 6 वाला, ये तो 4th चल रहा ना अभी। यस सर। 5th होगा मैग्नेटिज्म मैटर, 6th इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 7th इज। सर मेन तो यही 4 बड़े चैप्टर है ना स्टार्टिंग वाले। सब बड़ा भाई, 12th में कुछ छोटा नहीं है। इसके बाद एक बहुत खतरनाक है, बड़ा सा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, which has a very high weightage in the competitive exam।
डन, रफ करो उसको, समझ में आ गया ये। आइडियल एमीटर का मतलब जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, जीरो रेजिस्टेंस होने से कोई भी चेंज नहीं होगा इन द एक्सटर्नल सर्किट, द करंट मेजर्ड विल बी एक्यूरेट सेम एज द एक्चुअल करंट। अब इसके क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होती है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी गिवन होती है, जैसे इंस्टेड ऑफ गिविंग द फुल डिफ्लेक्शन करंट, ये गिवन होगा कि एक डिवीजन कितनी करंट के रिप्रेजेंट करता है, लाइक 1 माइक्रो एम्पियर करस्पॉन्ड्स टू ईच डिवीजन। एक माइक्रो एम्पियर करंट है तो वो पॉइंटर एक डिवीजन हिलता है, एंड देयर आर 100 डिवीजन, सो 100 माइक्रो एम्पियर। तो ऐसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, बस ओनली दैट मच इज डिफिकल्टी। बाकी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, direct formula is how will you convert a galvanometer into a meter of range 20 ampere? By connecting a small resistance in parallel with the galvanometer coil, और shunt resistance की वैल्यू का फॉर्मूला IGRG upon I minus R, I minus I। सक्षम? Yes, sir. बट आप ऑफलाइन आओ, आप यू आर हाँ, नॉन sir. रनिंग स्टूडेंट, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सब बच्चे आते हैं यहाँ पे, कैन कम अर्ली एंड डू द प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मी। कौन सा टाइम से था? कभी भी आ जाओ, मतलब आफ्टर 12 एनी डे, ऑल 7 days आई एम अवेलेबल, कम एंड सिट एंड डू द प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके बाद क्लास भी करो। ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग यार, ठीक है, मैं 12 नेक्स्ट to वीक 4। से आऊंगा। हाँ बेटा आना शुरू करो अब, कोई शिकायत नहीं। नहीं सर, वो चोट लग गई थी, अगले हफ्ते आऊंगा इसलिए। हाँ हाँ ठीक। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? अगेन व्हाई वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली टू मेजर दी वोल्ट, वोल्टमीटर मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पोटेंशियल सेम होना जरूरी है, और पोटेंशियल सेम तभी होगा जब वो पैरेलल में लगा। किसी भी सर्किट में सपोज वी आर यूजिंग द डायरेक्ट moving curve galvanometer, let's take the same example to measure the current, measure the potential difference across this 2 ohm resistor। इसको मेजर करने के लिए हमने साथ में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। To measure this voltage or potential difference between P and Q, अभी प्रॉब्लम क्या है? करंट तो थी I सर्किट में, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 2 एम्पियर, but now this whole current will not be going into 2 ohm, क्योंकि करंट के पास अभी दो ब्रांचेस आ, the current I, this is 2 ohm, and साथ में जो भी है 100 ohm 50 ohm whatever, but there is division of current, IG current goes into the galvanometer, remaining I minus IG goes into the 2 ohm resistor, और दोनों मिलके यहाँ पे आ गए I। फुल ओके। अब प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द चैलेंज? गैल्वेनोमीटर में जो करंट है उसकी वजह से पोटेंशियल कम हो गया, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल चेंज। एक्चुअल पोटेंशियल तो था I इंटू आर, अगर पूरी करंट इसमें जाती है I इंटू आर विच इज 4 वोल्ट। करंट हम पहले निकाल चुके थे 10/5 दैट इज 2 एम्पियर, 4 वोल्ट करंट है, सो रीडिंग में भी 4 वोल्ट आना चाहिए व्हेन वी मेजर बाय गैल्वेनोमीटर, बट now the current is I minus IG, IG क्या है तो I1 कर लो, to avoid that it is not always necessary to be full scale deflection current into 2, so potential measured will be less than 4 volt, and therefore the potential will be less than the actual potential always। अब अगर सपोज ये भी 120 100 ओम ये भी 100 ओम है तो आधा का डिवाइड हो जाएगा, the voltage reading will be again very highly inaccurate। To make it closer to the actual potential, हमें I1 को as small as possible करना है। I1 जितना छोटा होगा, this value will be closer to I, so measured value will be equal to actual value or closer to actual value।
अगर हम ये चाहते हैं कि करंट डिवाइड होते टाइम दूसरे बैच में कम से कम जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट पास होगी। कैल्वेनोमीटर के अंदर जब करंट जाएगी, दैट करंट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें सीरीज में कनेक्ट करना होता है, सो दिस इज गैल्वेनोमीटर कॉइल। We connect a very high resistance in series with galvanometer coil to convert it into voltmeter. Bro, यस सर। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। यस या नो, क्या बोला आपने? सर मैंने हाँ जी बोला था। हाँ जी बोला। गैल्वेनोमीटर के साथ हमें हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। गैल्वेनोमीटर का सपोज 100 ओम था, हमने साथ में 10,000 20,000 कुछ बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में। एडवांटेज, उसका रेजिस्टेंस जितना हाई होगा करंट उतनी छोटी होगी, जितनी छोटी करंट होगी the measured value will be closer to the actual value. So to convert a galvanometer into a voltmeter, a very high resistance is connected in series with galvanometer coil. Very high resistance has to be connected in series with galvanometer coil. गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज रेजिस्टेंस लगाना है हमें, और वो बहुत हाई होना चाहिए। बट सिंस इट इज इन सीरीज, तो गैल्वेनोमीटर में जितनी करंट पास हो सकती है, that current will pass through the series resistance also. So जितना भी potential इसके cross है V, that potential can be measured. The voltmeter can draw maximum current equal to the full deflection current from the circuit, or potential difference that it can measure V is equal to I into R, RG plus RS. Rg plus Rs is equal to V by Ig. So series resistance required to measure a potential up to V by Ig minus Rg. Series resistance required to measure potential up to V. वेरी हाई। क्यों है? जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट जाएगी गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में, और जितनी कम करंट उतना ही बेटर will be the value, closer will be the value. Series resistance required to measure the potential difference up to V. So V is also the range of voltmeter. हम मीटर बनाने के लिए पैरेलल में बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं, और वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, एज हाई एज पॉसिबल।
राइट, तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को सीरीज में अगर हम हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं गैल्वेनोमेट्रिक कॉइल के साथ तो वोल्टमीटर बनता है, और पैरेलल में लगाते हैं अगर तो पैरेलल में बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे देन इट इज अमीटर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर? दोनों सीरीज में, सो इट विल बी Rg प्लस Rs। करेक्ट, ओके। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन, आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? Infinite, so that does not draw any current from the circuit. It has to be infinite. Ideal voltmeter is infinite. अब गैल्वेनोमीटर को हम माइक्रोमीटर से बोलते हैं जब करंट ऑलरेडी माइक्रोमीटर के रेंज में है, माइक्रो एम्पियर के रेंज में है, देन ऑलरेडी द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। उसमें थोड़ा बहुत गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं एज ए मीटर इफ द करंट इज वेरी 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 स्मॉल माइक्रो एम्पियर के रेंज में। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, आप अपनी डीपीपी एक बार खोल लीजिए। वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ ट्रिकी। कल क्या करेंगे फिर? अब बेटा सर कल क्या करेंगे फिर? कल नहीं, हम आज ही स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो पहले। We'll start magnetism and matter in today's class only. We still have half an hour. सर हाफ एन आवर में क्वेश्चन कर लेते हैं ना सारे। अरे आगे भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, दोनों कर लेंगे यार, क्या समझते हैं? Right, so DPP number 5, DPP number 6, 5 हमने कर ली थी। DPP number 6 के कुछ क्वेश्चन शायद करना स्टार्ट किए थे, बट देन वी स्टॉप इट। DPP number 6, प्लीज ओपन फ्रॉम योर, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम अभी कर लेते हैं साथ साथ, बाकी फ्राइडे की क्लास में वी विल डिस्कस। DPP number 6, please open in from your WhatsApp group. Moving coil galvanometer and its conversion. Questions थोड़े टेढ़े-मेढ़े वाले टाइप। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? मोस्टली फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कैलकुलेट करने में और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी डायरेक्टली गिवन, स्पेशली एट द कंप्यूटर लेवल। सर नहीं कर रहे ना चैप्टर 5 आज? चैप्टर 5 करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं यार, थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे। चैप्टर 5 बहुत छोटा सा है, मतलब हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे आज। चैप्टर 5 कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। कल कुछ तो कर लिए थे, लेकिन वो फिर से करने पड़ेंगे कि शायद ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने इस बैच में नहीं पढ़ा था, दूसरे बैच में पढ़ा था, तो इसलिए विल डू इट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। DPP नंबर 6 कल क्लास में नहीं ज्वाइन की थी? पहले तो नहीं होता था एक्स्ट्रा क्लास। यस, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़े से सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3, DPP 6, क्वेश्चन नंबर 3, पावनी
Rag. Very good. Question number 3rd. A galvanometer has voltmeter reads 5 volt at full में. पहले 3rd नहीं करते, पहले थोड़ा इजी वाले कर लेते हैं. Start with question number. Question number 11. Start with question number 11. Question number 11 पहले क्या बोल रहा है ये? A scale of galvanometer resistance 100 ohm contains 25 divisions. तो पहले तो galvanometer का resistance given है, it is 100 ohm. बड़ा क्वेश्चन है आपके पास, सबके पास? ध्रुव, नव्या. Yes, sir. DPP number 6 from the group. 100 ohm resistance of galvanometer coil or 25 division है. The division of 1 gives the it gives the 1 deflection division on passing current of 4 into 10 to the power minus 4 ampere. Number of divisions 25 given है, and the current is given per division as 4 into 10 to the power minus 4 ampere. Is it a sensitivity? No, ये sensitivity तो उल्टा था, division per unit current. बट बुक में इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है दैट सेंसिटिविटी. सो डोंट जस्ट गेट कंफ्यूज. आपको देखना है उसकी यूनिट से, वेदर इट इज द करंट पर डिवीजन और इट इज डिवीजन पर यूनिट करंट. दोनों तरह से इंफॉर्मेशन गिवन होती है. इसका एक्चुअल नाम है वैसे फिगर ऑफ मेरिट. करंट पर डिवीजन इज कॉल्ड फिगर पर मेरिट एंड डिवीजन पर यूनिट करंट एंड डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. बट क्वेश्चन में अगर सेंसिटिविटी इस नाम से लिखा है तो भी आप उसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एक डिवीजन में 4 into 10 to the power minus 4, टोटल डिवीजन 25. so full scale deflection current will be 25 multiplied by 4 into 10 to the power minus 4. 100 into 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 2, which is 0.01. Full Hello. Yes. Full scale deflection current 0.01. Galvanometer resistance is 100 ohm. हमें एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना है जिसकी रेंज हो 2.5 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 11, राइट? तो V is 2.5 वोल्ट का हमें वोल्टमीटर चाहिए. डिवाइड बाय 0.01 minus 100, it will come out 150 ohm. Right? Okay. Next question. ये किधर लगाएंगे? सीरीज में, बिकॉज इट इज अ वोल्टमीटर. वोल्टमीटर के लिए इसको हमेशा लगाना होता है सीरीज में. क्वेश्चन नंबर 17. तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. It says a galvanometer resistance 100 ohm gives a full deflection for a current of 10 to the power minus 5. 17 में galvanometer resistance is 100 ohm. Full scale deflection current is also given as 10 to the power minus 5 ampere. Full scale current is 10 to the power minus 5 ampere. To convert it into an ammeter capable of measuring up to 1 ampere. So capital I is 1 ampere.
Now find the resistance required as a shunt. So in the case of galvanometer conversion into ammeter, we require a shunt in parallel. Ig times Rg is equal to I minus Ig times Rs. हमें RS निकालना है. Rest all the information are given. Shunt resistance ammeter बनाने के लिए पैरेलल में चाहिए. Ig divided by I minus Ig times R. क्या है आंसर? व्योम 10 to the power 3 minus 3 ohm. 10 to the power minus 3 ohm in parallel, so it will be second option. Okay, अब थोड़े से टेढ़े मेढ़े देख लेते हैं. For example, the question number 9. Question number 9. A moving coil galvanometer has 150 equal divisions. 150 equal divisions. Current sensitivity is 10 divisions per milliampere. Voltage sensitivity is 2 divisions per milliampere. Question number 9. Question number 9. A moving coil galvanometer has 150 equal divisions. Current वन फिफ्टी डिविजन है और इसमें सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी बोथ आर गिवन, बट इट्स गिवन 10 divisions per milliampere, and for current sensitivity 1 milliampere corresponds to 10 division when measured as current, and 2 division per millivolt. 2 division per millivolt. On this, अब अगर हम फुल स्केल यूज करते हैं, लेट्स से फुल स्केल हैज 150, इट इज 0. तो फुल स्केल की करस्पॉन्डिंग करंट एंड फुल स्केल की करस्पॉन्डिंग वोल्टेज दैट वी कैन मेजर फ्रॉम दिस. ये करंट सेंसिटिविटी है, बट we will use this to calculate the full deflection current. 10 divisions means 1 milliampere. So 150 division means 15 milliampere. 10 divisions correspond to 1 milliampere. Right? 150 divisions correspond to 15 milliampere. So that will be the full deflection current, and this galvanometer is 15 milliampere. ऐसे आ जाते हैं वोल्टेज के लिए. एक डिवीजन में 2 division corresponds to 1 millivolt. So 150 divisions correspond to 75. 150 divisions का मतलब हो गया 75 millivolt. So that full
scale deflection is 75 millivolt. तो हमें एक तो चाहिए होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट और दूसरा चाहिए होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालें? फुल स्केल के करस्पॉन्डिंग करंट पता है, वोल्टेज पता है, डिवाइडेड टू कैलकुलेट द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 75 millivolt divided by 15 milliampere, which will be 5 ohm. Resistance of galvano. Now the question starts, हमें करना है इसमें to convert it into such a voltmeter that each division reads 1 volt. 150 डिवीजन है तो हमें एक वोल्टमीटर बनाना है जिसका रेंज होना चाहिए 150 वोल्ट। Range of voltmeter is 150 volt, right? ये इससे गैल्वेनोमीटर है ना, अभी तो मीटर बनाया कहाँ है, वोल्टमीटर तो बनाना है। गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन लगाने पे 75 और गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन करंट 75। अब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगाना है Rg प्लस Rs। दिस V 1 वोल्ट एक डिवीजन से रीड हो, ऐसा हमें वोल्टमीटर बनाना है। V is equal to Ig times Rg plus Rs। Now with this we will calculate the series resistance V by Ig minus R। ब्रांच यस सर। हो गया आंसर, 9th का आंसर। क्या भाई आंसर इतना नहीं लिखता है यार। ब्रो व्हाट इज द आंसर? V by Ig 150 by 15 milliampere minus 5 10,000 minus 5 995 B is the answer। B ओके थोड़ा सा और अच्छी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में भी। क्वेश्चन नंबर 3 question number 3 last question from this topic, then we will start 5th chapter today only। सर टाइम तो हो ही जाएगा फिर। अब सबको क्या करना है, 5:30 क्लास है। यस सर। 5:30 ना अभी है, 5-10 मिनट है बस। ठीक है कर लेंगे, बचेगा टाइम नहीं तो कल करेंगे। galvanometer as a voltmeter reads 5 volt at full deflection। galvanometer full deflection पे 5 volt रीड करता है। this is the voltage corresponding to full scale deflection।
and is graded according to the, this is for a voltmeter, and it is graded according to the resistance per unit volt as 5000 ohm per volt. So 5000 ohm per volt is the graded resistance. यानी अगर इतना रेजिस्टेंस 5000 का है तो 1 वोल्ट शो करेगा. Now since it is showing as 5 volt, that means resistance must be how much? 25,000. 1 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस 5000 ohm. This is resistance of the galvanometer, sorry, of the voltmeter, which is required per volt is 5000. Since it is measuring 5 volt, that means its resistance must be resistance of voltmeter 25,000, and V is equal to Ig times Rg plus Rs. Is Rg plus Rs is 25,000. V is 5 volt. तो ऐसे हम यहाँ से I निकाल सकते हैं, Ig निकाल सकते हैं, बट जरूरत नहीं है क्योंकि हम आगे डिवाइड करके कैंसिल आउट कर लेंगे. नेक्स्ट पार्ट सेज how will you convert it into a voltmeter that with 20 volt at full deflection? 20 volt के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 volt के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये था 5 volt. Initially it is 5, when it is 25. Now it is 20. Ig तो same है because it's the same galvanometer we are using, and that become the R dash 25,000. Initially it was 25,000. तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी. V is equal to Ig is resistance of the voltmeter. तो ये पूरा not just Rs. Rg plus Rs initially is 25,000, and now we have to measure up to 20 volt. So R dash, divide the two. टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए अभी 1 लाख ओम. अगर हमें इस ऊपर वाले वोल्टमीटर को ही कन्वर्ट करना है, इसका रेजिस्टेंस था 25,000, अभी हमें बनाना है 1 लाख. दैट मींस 75,000 शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज. अगर इस 5 वोल्ट वाले रेजिस्टर वोल्टमीटर को 20 वोल्ट के लिए सुटेबल बनाना है, देन वी हैव टू connect 75,000 ohm in series. सर फिर इसमें डिफिकल्ट क्या था? जल्दी हो ही रहा था yesterday. तो करो, क्या करना है अभी जाके यार. क्या priority है? 75,000 ohm in series. Will you prefer this to one that is graded as okay? Question है, will it still be graded as 5,000 ohm per volt? Right? 5,000 ohm per volt is. सर Ig की वैल्यू निकाल ली होगी ना? जरूरत नहीं पड़ी ना, दोनों को डिवाइड कर दिया 1/2/1. कैंसिल आउट ही हो गया. निकाल के चाहे पुट करो. विदित का फोन रखा था वहाँ. विदित का फोन रखा था. यस. तो इसका जो ओम ग्रेडिंग है दैट इज सेम 5000. लास्ट लाइन इज विल यू प्रेफर 2000 ओम पर वोल्ट और 5000 ओम पर वोल्ट? कौन सा वाला प्रेफर करेंगे आप वोल्टमीटर, जिसकी ग्रेडिंग 2000 है या 5000 है?
वोल्टमीटर में जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ही बेटर होगा, बिकॉज उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, एंड देयरफॉर इट हैज टू बी 5000 ohm per volt. The grading 5000 ohm per volt means more will be the resistance. More resistance means more will be the accurate will be the reading. Right? Okay. पूरा रेजिस्टेंस ना वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, the voltmeter resistance, so that's why it is RG plus R. Okay, ठीक है. I think सारी वैरायटी के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं. इसमें एक वो छोड़ दिया है डिफ्लेक्शन वाला एंड टॉर्शनल कांस्टेंट, वो अभी आप छोड़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 बस लास्ट आप कर लो, then we are done for today. Question number 20, microammeter is nothing but galvanometer. It's given that resistance 100 ohm है और full scale range of 50 microampere. 100 ohm का resistance है, 50 microampere is the current, and as a result हमें इस वोल्टमीटर को एक एमीटर बनाना है और तो फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. बिल्कुल सही है. दो फॉर्मूले, एक शंट रेजिस्टेंस लगा के सीरीज मीटर में और सीरीज रेजिस्टेंस लगा के. So this is a multiple choice. There will be two options correct. Tomorrow we'll start magnetism and matter, but before that, please revise the lectures जो AP सर ने लिया है, वीडियो लेक्चर एटलीस्ट, क्योंकि उस चैप्टर में काफी कुछ थ्योरी है और थ्योरी वाला पोर्शन में स्किप करूंगा, बिकॉज उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है कंप्यूटर लेवल के लिए, विच इज नोवेयर इन दी एनसीईआरटी, लाइक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, tan A tan B position, magnetometer, tangent law. All those things are not in the normal NCERT level. Computer level के questions में आ चुका है. So we will start with the magnet and बार मैग्नेट. तो उसकी जो थ्योरी वाला पोर्शन है, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी कट करो तो फिर से दो बन जाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दैट यू हैव टू रिवाइज टू दी सीबीएसई क्लासेस. सर प्रॉपर्टीज तो कट गया ना सिलेबस से. कुछ नहीं कटा भाई, सब आपस में जुड़ा ही हुआ है. तुम एग्जाम में पढ़ना तो काट देना, अलग बात है. कहने के लिए कटता है बट एग्जाम के लिए कुछ कटता नहीं है, बिकॉज दे ऑल आर इंटरलिंक्ड. प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन जब तक प्रॉपर्टीज नहीं पता है तब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. सर प्रॉपर्टीज तो बहुत बड़ी है यार चलो ठीक, कल मिलते हैं. बाय बाय. थैंक यू. Thanks.